इलॉन मस्क के ट्वीट से खुली मिलेडी एनएफटीज की किस्मत। याचिका खारिज होने के बावजूद रेडियो ने ही छोड़ी उम्मीद, प्लेयर्स के साथ डिवीजन बेंच में दायर की अपील। वेब3 की दुनिया में धमाल मचाने को तैयार है आपकी चहेती बार्बी। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं रुचि शर्मा। कैसा लगा इस हफ्ते की एनएफटी न्यूज का ये ट्रेलर? तो चलिए एनएफटी वर्स के इस एपिसोड में आपके फेवरेट एनएफटी प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स के साथ साथ एक खास गेस्ट से मुलाकात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा एनएफटी मार्केट का हालचाल। एनएफटी मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले हफ्ते अच्छी रही। मीम कॉइन को लेकर ट्रेंड के बावजूद एनएफटीज की ग्लोबल ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल देखा गया है। एनएफटी मार्केट पिछले 7 दिनों में $217 मिलियन की एनएफटी सेल्स के साथ 36% बढ़ी है। हर बार की तरह पिछले हफ्ते भी 15% की बढ़त के साथ सबसे ऊपर रही इथेरियम एनएफटीज, जिसने कुल $112 मिलियन की सेल्स जुटाई। तो इस हफ्ते दूसरे नंबर पर रही बिटकॉइन एनएफटीज, जिसने 260% के जबरदस्त जंप के साथ $56 मिलियन की सेल्स इकट्ठा की। पिछले हफ्ते इस लिस्ट में एक नई एंट्री हुई माइथोस की, जो एक ब्लॉकचेन और गेमिंग इकोसिस्टम है। माइथोस ने इस हफ्ते 11 मिलियन की सेल के साथ सोलाना और पॉलीगॉन दोनों को मात दे दी, जो कि $9 मिलियन और $7 मिलियन के साथ चौथे और पांचवें पायदान पर रही। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे गेस्ट साहिल बंसल का, जो एनएफटी वॉयज के सीएमओ हैं। लॉन्च के महज 3 महीनों में बिटकॉइन ऑर्डिनल्स ने पॉलीगॉन और सोलाना एनएफटीज को पीछे छोड़ते हुए सेकंड पोजीशन हासिल कर ली है। क्यों बिटकॉइन ऑर्डिनल्स इतनी तेजी से तरक्की कर रहा है और क्या है बिटकॉइन एनएफटीज का फ्यूचर? क्या इथेरियम एनएफटीज को भी पीछे छोड़ देगी? Bitcoin NFTs are on the second position in NFT sales this week. Why are Bitcoin NFTs gaining so much traction, and will it surpass Ethereum network NFT sales in the future? Of course, Bitcoin NFT sales are on the second position this week. I'm sure that it has been the case since quite some time also in the larger picture if you look at it, because considering the primary reason, the gas fee is quite lower when it comes to Bitcoin NFTs, because the transaction gas fee is something that you cannot escape, that it has to be a part of the entire transaction, and it's relatively lower when it comes to this as compared to the other networks. Moving on to the second notion that I have is it has a larger user base, which directly affects the entire footfall and the entire notion when it comes to the traction of the website or whatever the entire transaction is going to be. The third one is that it's clearly comparatively easier to mint. Marginally speaking, when it comes to the technological jargon of this world and anything becomes easier to mint, it changes the lifespan and the cycle of the entire thing. So meaning that people are going to be more driven towards it, especially when we're chatting about cryptocurrency and everything. Then I'd come to the fourth and my final point, which is to mention that after the entire launching of the network of ERC20 tokens, the next big thing with the ordinals NFT creator can decide the number of NFTs minted. The number of NFTs minted, which could be like decided by the creator itself, is a notion that just gives you a lot of flexibility, because it's an extremely volatile market out there and it's something that everyone is still figuring it out. They don't really understand the entire nitty-gritties of it, but the amalgamation of this entire bit of it is quite thrilling. And of course, the biggest reason is security. Security, as in, it's something that has existed for a way longer time as compared to the other network chains, and people have heard more of it. The recall theory is higher. That's just how I'd like to conclude the entire thing. But millions of Bitcoin transactions are pending few days back because of network congestion. That is also there. So I cannot conclude the fact that the Ethereum chain would get surpassed. That is something that remains untold. My inclination is that it's not going to Bitcoin is not going to surpass the Ethereum chain as of now. But let's see what the world has to offer. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बिजनेस मैग्नेट इलॉन मस्क भी गजब की हस्ती हैं। इनकी छोटी मोटी कथनी करनी भी मार्केट पर जोरदार असर करती है। डोज कॉइन के सपोर्टर रहे इलॉन मस्क ने जब पिछले दिनों ट्विटर के लोगो में डोज कॉइन की फोटो लगाई, तो डोज कॉइन की जैसे किस्मत खुल गई। चंद मिनटों में डोज पहली बार 37% बढ़ गया और अब ऐसा ही कुछ हो रहा है मिलेडी एनएफटीज के साथ। इलॉन को ट्विटर से कितना प्यार है ये दुनिया जानती है।
आए दिन वो कोई ना कोई ऐसा ट्वीट करते रहते हैं जो टेक मार्केट्स की दुनिया में हलचल मचा देता है। अब इलॉन ने मिलेरी के एक अवतार का एनीमे स्टाइल मीम बनाकर ट्वीट किया है। इस पर लिखा है, देयर इज नो मीम, आई लव यू। बस फिर क्या था? इस ट्वीट ने ऐसी हलचल मचाई कि 1 घंटे के अंदर अंदर ना सिर्फ इसे 4 मिलियन व्यूज मिले, इस पर लाखों इंटरैक्शंस हुए, बल्कि मिलेरी एनएफटीज के प्राइस ने भी जबरदस्त छलांग लगाई। सेकेंडरी मार्केट पर इसका प्राइस 3.75 ETH से सीधा 7.3 ETH पहुंच गया, यानी 24 घंटों के लिए इसका प्राइस 57% उछला। फिलहाल ये 5.69 ETH पर है। इसका असर NFT मार्केटप्लेस ओपनसी पर भी दिखा। एक ही घंटे में 600 से ज्यादा मिलेरी NFTs 3700 ETH के लिए यानी $6.9 मिलियन के लिए बिक गई। बेशक उस दौरान ओपनसी पर यह बेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट था। रैलियों को देख आजकल मुझे यही गाना याद आता है, जो स्ट्राइकर और MPL के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई को छोड़ने को बिल्कुल राजी नहीं है। याद है आपको, कुछ 2 हफ्ते पहले रेडियो ने स्ट्राइकर और MPL के खिलाफ केस दायर किया था, ये कहते हुए कि वो रेडियो से एसोसिएटेड स्पोर्ट्स स्टार्स की NFTs का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी थी कि इन प्लेयर्स की ये तमाम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और ऐसी इंफॉर्मेशन कोई भी यूज कर सकता है, इस पर किसी का हक नहीं है, यहाँ तक कि खुद प्लेयर्स का भी नहीं। उसी के जवाब में अब क्रिकेटर्स मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल, अर्शदीप सिंह, उरमान मलिक, शिवम मावी ने रेडियो के साथ मिलकर अब डिवीजन बेंच के सामने अपील की है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्लेयर्स की इमेजेस वाली NFTs उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए प्लेयर्स का उन पर पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि OFS अपने प्लेटफॉर्म पर टीम्स क्रिएट करने के लिए किसी प्लेयर्स की इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उसकी NFT बनाते हैं तो वह पीस प्रॉपर्टी बन जाता है जिस पर प्लेयर का अधिकार होता है। ऐसी इमेज NFTs को कोई प्लेटफॉर्म ना तो ट्रेड कर सकता है और ना ही उस प्लेयर की सहमति के बिना उस NFT से पैसा बना सकता है। अब बच्चे टॉयज खरीदने की नहीं बल्कि NFTs और डिजिटल कलेक्टिबल्स खरीदने की जिद करेंगे, क्योंकि हम सबकी फेवरेट बार्बी अब Web3 वर्ल्ड में एंट्री कर रही है। वो डॉल जिसके साथ शायद ही दुनिया में कोई बच्ची हो जो खेली ना हो, अब वो Web3 की दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। बार्बी के लिए क्रेज और उसकी पॉपुलैरिटी से तो हर कोई वाकिफ है ही। 1959 में लॉन्च हुई बार्बी डॉल्स अब तक ना जाने कितनी प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड लुक्स में लॉन्च हुई हैं। ये वो पावरफुल लुक्स हैं जिससे करोड़ों बच्चे अलग अलग करियर्स के लिए बचपन से ही इंस्पायर हुए हैं। कुछ ऐसी ही पर्सनालिटी ट्रेट्स को सिंबलाइज करती हैं बॉस ब्यूटी NFTs। ऐसे में बार्बी और बॉस ब्यूटीज भला कैसे कोलैबोरेट ना करते? इस कोलैबोरेशन के तहत बार्बी के डिजिटल कलेक्टिबल्स लॉन्च किए जाएंगे और वो भी अब तक की बार्बी की बेस्ट करियर लुक्स में। इसके लिए 250 लुक्स सिलेक्ट की गई हैं, जिसमें आर्टिस्ट, एस्ट्रोनॉट्स, CEOs, डॉक्टर्स, वेट्स और पायलट की लुक भी शामिल है। ये कलेक्शन metalcreation.com पर $25 पर पैक के प्राइस पर अवेलेबल होगी। ये कलेक्शन कई रेयरिटी फीचर्स ऑफर करती है और हर पैक में 4 रैंडमली सिलेक्टेड बार्बी कलेक्टिबल्स होंगे। ये कलेक्शन 18 मई को वीकॉन प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की जाएगी। NFTs भला किसे पसंद नहीं है? आने वाले समय में हो सकता है आप टीवी देखते देखते टीवी पर ही अपनी फेवरेट NFTs एक्सप्लोर और बाय एंड सेल कर सकेंगे। साउथ कोरियन टेक कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने हाल ही में अपने ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट टीवी के लिए पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है। LG ने इस पेटेंट के लिए नवंबर 2021 में अर्जी दी थी। अब ये फैसला होना बाकी है कि इस इनोवेशन को मंजूरी मिलती है या नहीं। LG की इस ऐप से अन्य डिवाइसेस को क्रिप्टो वॉलेट और NFT मार्केट सर्वर से कनेक्ट किया जा सकेगा ताकि ट्रांजैक्शंस हो सके। NFT मार्केट सर्वर के साथ कनेक्ट करते ही डिवाइस ऑन स्क्रीन QR कोड्स जनरेट करेगी, जिससे यूजर्स अपने क्रिप्टो वॉलेट के जरिए अपने ट्रांजैक्शंस पूरे कर सकेंगे। LG ने पिछले साल सितंबर में अपना NFT प्लेटफॉर्म आर्ट लैब लॉन्च किया था। जाहिर है अपनी NFT मार्केटप्लेस लाने के बाद अपने स्मार्ट टीवी पर NFTs की ट्रेडिंग शुरू करना इस डायरेक्शन में अगला कदम साबित होगा। लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि LG का टीवी सिर्फ अपने वॉलेट वोलिप्टो तक ही सीमित रहेगा या दूसरी कंपनियों के वॉलेट्स को भी सपोर्ट करेगा। दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड ऑफ NFTverse। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए लाती रहूंगी। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 3.0 TV। ऐसी और अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io या फिर QR कोड को स्कैन करें।